Okay, children. Now, in this lecture, we start Kirchhoffs laws. Kirchhoffs laws or rules. देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है. हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ा है, हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ा है. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वी कैन कैलकुलेट बाय अप्लाइंग Ohm's law. We can calculate current in the circuit and different branches of the circuits. But there are so many such complex circuits in which we cannot apply these laws directly. We cannot find equivalent resistance, we cannot find the current in a complex circuit by applying the law of series combination and law of parallel combination. तो ऐसे नेटवर्क्स को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ के रूल्स हैं, इनको हम अप्लाई करते हैं. सो देयर आर two Kirchhoffs laws. First law, it is first law, Kirchhoff's first law, which is known as Kirchhoff's first law or Kirchhoff's loop law. Kirchhoff's junction law. Junction law. It is called Kirchhoff's junction law or Kirchhoff's current law. KCL भी कहते हैं. So there are three names: either Kirchhoff's first law, Kirchhoff's junction law, or Kirchhoff's current law. It states that the algebraic sum of all currents meeting at a junction in a closed circuit or loop is zero. That is summation of I equals to 0. ये फॉर्मूला है, summation of I is equal to 0. How can we explain it? We can explain it in this way. Suppose there is a junction and there are certain incoming and outgoing currents in that. Suppose this is incoming currents and this is outgoing currents. This is I5 and suppose it is I6. So there is a junction in a circuit in which few currents are just incoming current to the junction and few currents are outgoing to the junction. Then according to this law, the summation of I, algebraic sum of all the currents should be 0. When we take the algebraic current, then we have to consider the sign. Either incoming currents are taken as positive or outgoing currents are taken as positive and another will be negative. अगर इनकमिंग को पॉजिटिव लेते हैं तो आउटगोइंग को नेगेटिव लेंगे, और अगर इनकमिंग को आप नेगेटिव लेते हैं तो आउटगोइंग को कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे. तो हम यहाँ इनकमिंग करंट को पॉजिटिव मानते हुए आउटगोइंग को नेगेटिव लेते हुए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं. तो देखिए कैसे आएगा अलजेब्रिक सम. फ्रॉम द फिगर I1 प्लस I2 माइनस I प्लस I4. देखिए I1 इनकमिंग है, I2 इनकमिंग है. व्हाट अबाउट I3? फर्स्ट I3 is outgoing. What about I4? Outgoing. What is I5? Outgoing. What is I6? Incoming. And that must be 0. देखिए I1, I2, I6 तीनों कैसे हैं? Incoming. I1, I2 and I6. What about these three? These three are outgoing currents. That's why this is I3, I4 and I5. Or I can write I1 plus I2 plus I6 is equal to I3 plus I4 plus I5. That is sum of incoming currents is equal to sum of outgoing currents. And what is current? Nothing but it is a rate of flow of charge. Current is rate of flow of charge. It means in a given time the charge entering or moving towards the junction again will move away from the junction. So there is no accumulation of charge at the junction. That's why it obeys, this law obeys law of conservation of charge. Law of conservation of charge. Alright. In this case, if you take I1 in time t, then you can say I1 into t. How much charge carried by this current? I1 into t in time t. What about charge carried by this current I2 in time t? Plus I2 into t plus I3 into t is equal to, I6 into t is equal to I3 into t plus I4 into t plus I5 into t. And what is this? That is equal to charge Q1 plus Q2 plus Q6 is equal to Q3 plus Q4 plus Q5. It means total incoming charge is equal to the total outgoing charge. That's why there is no accumulation or there is no storage of charge at the junction. So how much charge is just
the flowing in the circuit before the junction, again the same amount of charge will flow after the junction in different branches in the closed circuit. So this is all about Kirchhoff's first law, which is known as junction law, because we are talking about a junction, and now it is called Kirchhoff's current law, KCL, C for current, L for law. So this is Kirchhoff's first law. Okay, come to Kirchhoff's second law. There is one more law, Kirchhoff's second law, and this law is known as Kirchhoff's loop law. Loop law, and it is known as Kirchhoff's voltage law. There are again three names of this law. Either you get Kirchhoff's second law, Kirchhoff's loop law, or Kirchhoff's voltage law. In short, I can write Kirchhoff's voltage law, KVL. Okay, what is this law now? According to this law, the change in potential, the change, rather algebraic sum of change in potentials in a closed loop is equal to 0. जीरो होना चाहिए चेंज इन पोटेंशियल्स किसी भी क्लोज लूप में. तो क्या लिखेंगे आप इसमें बच्चों? इट स्टेट्स दैट द algebraic sum of change in potentials in a closed loop should be a 0. That is algebraic sum of delta V in a closed loop should be 0. What is delta V? Change in potential in a closed loop, and this is the algebraic sum. It must be equal to 0. Let's simplify it. हम इसको थोड़ा सिंपल तरीके से कैसे लिख सकते हैं? हम इसको मॉडिफाई करके थोड़ा आसान बनाते हैं, और it states that the algebraic sum of product of currents and resistances in a circuit, in a closed loop is equal to the algebraic sum of EMFs of the cells in that loop. क्या मतलब हुआ? Algebraic sum of products of current and resistances. Suppose I is the current and R is the resistance. So what is the product of current and resistance? I and R. I into R. If I is the current flowing through resistance R, the product will be I into R. And next I1 into R1, I2 into R3, R2, I3 into R3. The algebraic sum of all these products of currents and resistances in a closed loop is equal to algebraic sum of EMFs of all the cells in that loop. किसी भी एक लूप के अंदर जितने भी सेल लगे हुए हैं उन सभी सेल के EMF का algebraic sum, और उस लूप के अंदर जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं उन रेजिस्टेंसेज के कोरस्पॉन्डिंग करंट्स के प्रोडक्ट्स का algebraic sum that must be equal to 0, equal, so that sigma delta V is equal to 0. So this is potential, this is also a kind of potential. This minus this is equal to 0. तो किसी भी लूप में जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो 0 होगा, और पोटेंशियल और EMF किससे आता है? एनर्जी से आता है. That's why it obeys law of conservation of energy. तो basically it is law of conservation of energy. ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है. अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको अप्लाई कैसे करें? आई थिंक डेफिनेशन हमने लिखी है. अब हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई इट? देखिए एक लूप बनाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लूप. ये हमने एक लूप बनाया, और इस लूप में वी हैव मोर देन वन सेल्स, वी हैव टू सेल्स, दैट इज E1, E2, R1, R2 and R3, and there are three resistors R1, R2 and R3. And our objective is to find the currents through all the resistors R1, R2 and R3. तो क्या जो पहले रूल्स हैं हम उनसे निकाल सकते हैं, उनसे फाइंड कर सकते हैं? नहीं. अगर कर भी सकते हैं तो काफी डिफिकल्ट होगा. किरचॉफ लॉ से कैसे कर सकते हैं इससे सॉल्व? ये हमें दोनों लॉ अप्लाई करने हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ. तो देखिए हाउ मेनी सेल्स आते हैं, ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, अप्लाई करना यही सीख जाएंगे. देखिए दिस इज सेल E1 एंड दिस इज सेल E2. लेट्स टेक I1 इज द करंट फ्रॉम सेल E1 and I2 is the current from cell E2. दोनों सेल से अलग अलग करंट हम ड्रॉ मान लेते हैं. तो पहली सेल से I1 करंट ड्रॉ होता है, सेकंड सेल से कितना होता है? I2 होता है. तो देखिए एक ब्रांच में एक ही करंट पॉसिबल है, तो इधर भी कितना होगा? I1, और इधर भी कितना होगा? I2 होगा.
कम दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट इधर से करंट कितना आएगा I1, इधर से करंट कितना आएगा I2, फर्स्ट लॉ अप्लाई कीजिए, इनकमिंग करंट कितना हुआ I1 प्लस I2 और आउटगोइंग करंट भी कितना होना चाहिए, दैट मस्ट बी I1 प्लस I2। तो यहाँ ये जंक्शन बना, इस जंक्शन पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। और इसको अगर हम यहाँ से A कह देते हैं, ये B कह देते हैं, C है, ये D है, इसको F कह दीजिए, इसको G कह दीजिए, ठीक है। ये दो लूप बनते हैं, पहला लॉ क्लियर हो गया। तो यहाँ भी करंट कितना आएगा, दैट इज I1 प्लस I2 और यहाँ से करंट I2 और इस वाले ब्रांच में से करंट कितना जाएगा, I बन जाएगा। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट किसके अकॉर्डिंग, एज पर किरचॉफ्स व्हिच लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। कम टू द किरचॉफ सेकंड लॉ। अब हम किरचॉफ सेकंड लॉ लगाना चाहते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ में क्या लेना है, ये लेना है, अलजेब्रिक सम लेना है। अब अलजेब्रिक सम में क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम में सबसे पहले आप डायरेक्शन इमेजिन कीजिए। अब आपके पास देखिए दो ऑप्शंस हैं, either you can consider clockwise direction or you can consider anti-clockwise direction in which these products or the sign will be taken as positive। अगर हम यहाँ से लेके ये वाली डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन मानो, इसको भी क्या माने, पॉजिटिव डायरेक्शन। एंड इट डिपेंड्स ऑन टोटल आवर चॉइस, इट्स आवर चॉइस। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको हम एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव मानते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज। बोथ में बी एंटी क्लॉकवाइज, both may be clockwise, out of these two one may be anti clockwise और another may be clockwise। लेकिन जो भी आप एज्यूम करते हैं उसको फॉलो करो, ठीक है। इक्वेशन सेम बनेगी, हम बताएंगे कैसे इक्वेशन सेम बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्लॉकवाइज मानते हैं और एंटी क्लॉकवाइज, फिर भी हम कोशिश करते हैं जिसमें ज्यादा टर्म पॉजिटिव है उसको क्लॉकवाइज मानते हैं। चलिए इक्वेशन बनाते हैं, पहले एक इक्वेशन हम बना के बताते हैं। अभी लूप लेते हैं, कौन से वाला लूप, दिस इज ABFG। कौन सा लूप लगा रहे हैं, बाई KVL। KVL, व्हाट इज KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चलिए यहाँ से स्टार्ट करो, सिग्मा IR निकालो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाला पॉइंट, ये रेजिस्टेंस है R1, करंट कितना I1, डायरेक्शन बताओ, ये और ये डायरेक्शन दोनों कैसी हैं, सेम। इट मीन दिस डायरेक्शन इज along the assumed positive direction, that's why कितना आएगा बच्चों, ये I1 R1। तो I1 R1 कैसी टर्म हो गई, I1 R1 इज पॉजिटिव, ठीक। चलिए नीचे चलो, नीचे चलिए, यहाँ चलते हैं। अब बताइए ये करंट की डायरेक्शन और ये करंट की डायरेक्शन दोनों कैसे हो गई, अपोजिट हो गई। और अगर अपोजिट हो गई तो इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रूल क्या आना चाहिए, माइनस आ गया। तो देखिए इस वाले में करंट की डायरेक्शन इधर है, हमने पॉजिटिव मानी ये वाली डायरेक्शन, इट मींस ये करंट कैसा माना जाएगा, इसके लिए नेगेटिव हो जाएगा, I2 into R2। जरा इस लूप में और घूमिए, is there any other resistance in this loop? No, there is one more resistance R3, but it is outside this loop। इस लूप में नहीं है, इससे बाहर है, इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। केवल दो लूप में इस लूप में दो रेजिस्टेंसेस थे, दोनों का हमने क्या लिया, अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू। कम टू दिस पॉइंट, व्हाट अबाउट I1। देखिए I1 से नेचुरल डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है कि नहीं। ये जो I1 है ये किस वाले सेल से, E1 से करंट है। हमेशा कैसा लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव एज्यूम डायरेक्शन पॉजिटिव है कि नहीं। इस वाले में देखो, इस वाले में ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों कैसी होगी, अपोजिट होगी। अगर अपोजिट हो गया तो E2 कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो क्या आएगा, माइनस E2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो दिस इज अलजेब्रिक सम ऑफ EMFs इन दिस लूप एंड दिस इज अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेज इन दिस लूप। तो ये अलजेब्रिक सम हुआ, I1 R1 क्यों पॉजिटिव लिया, एज्यूम डायरेक्शन के लोग। I2 R2 में क्या है, अपोजिट है। इसमें यहाँ देखो E1 क्या बनेगा, डायरेक्शन सेम है इसलिए पॉजिटिव आया। E2 की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है इसलिए कैसा है, नेगेटिव आया। एक और लूप ले लीजिए, लूप विच वन, B C D F B। एक लूप ये लेते हैं, देखो ये वाला लूप है, इस वाले लूप में अप्लाई करो। कैसे अप्लाई करेंगे इस वाले में, यहां से चलिए स्टार्ट करो ऊपर से, I2 into R2। बताइए कौन सी डायरेक्शन है, ये दोनों डायरेक्शन सेम है कि नहीं। सो दिस टाइम I2 into R2 इज पॉजिटिव। ये टर्म पॉजिटिव होगी, कौन सा वाली टर्म पॉजिटिव होगी, I2 into R2। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ के यहाँ नीचे आ जाओ। बोलो ये दोनों टर्म कैसे बनेगी, अगेन दिस इज सेम डायरेक्शन। सो प्लस I1 प्लस I2 into R3। फाइंड एनी अदर रेजिस्टेंस इन एनी लूप। और कोई लूप में इसमें रेजिस्टेंस है या नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, केवल दो ही है, एक ये। तो इस लूप की जब हम बात कर रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस नहीं लिया जाएगा, ये आउटसाइड द लूप है, ये दूसरे लूप का रेजिस्टेंस है। हम इस वाले लूप की बात कर रहे हैं। अब बताइए ये लेफ्ट हैंड तो पूरा होगा, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों कैसी है, करंट की सेम है। तो दैट इज E2 इज पॉजिटिव। इज देयर एनी अदर सेल इन द सर्किट, नो। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड।
सो दिस इज लूप 1 एंड दिस इज लूप सेकंड, और इन दोनों लूप्स में हमारे पास वी हैव टू अननोन क्वांटिटीज, विच वन, I1 एंड I2. ऑन सॉल्विंग अबव दीज टू इक्वेशंस, ऑन सॉल्विंग above equations, I1 and I2 can be determined. So we can determine I1 and I2. I1 I2 को आप डिटरमाइन कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके. चलिए अच्छा, एक में हम डायरेक्शन रिवर्स करके देखते हैं. इफ आई एम गोइंग टू चेंज दिस डायरेक्शन, अगर हम इस डायरेक्शन को ऐसे कर दें, चलिए ये देखते हैं, ठीक है. लेट्स सी, एक इक्वेशन और बना देते हैं. अगर इसी लूप में हम डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, देन व्हाट विल हैपन, अप्लाई करते हैं. चलिए बताइए, I1 R1, ये डायरेक्शन और ये दोनों कैसी हो गई, अपोजिट. तो आएगा I1 R1 कैसा होगा, नेगेटिव. आगे बढ़ो, यहाँ आओ, बताओ ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों कैसी हो गई, सेम. तो प्लस क्या आएगा, I2 R2. ये डायरेक्शन तो पॉजिटिव वाली मानी आपने, ये पॉजिटिव वाली मान लिया आपने. अब बताओ इसमें ये कौन से वाला हो जाएगा, E2 की डायरेक्शन इससे मैच कर रही है कि नहीं, तो I2 कैसा हो जाएगा, सॉरी E2 इज पॉजिटिव एंड E1 इज नेगेटिव. और अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो क्या आएगा, माइनस I2 R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2. बताइए दोनों इक्वेशन सेम है कि नहीं. तो अगर हम डायरेक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, या रिवर्स कर देते हैं, रादर रिवर्स डायरेक्शन करने से क्या होगा, इसमें जो इक्वेशन बनेगी वो माइनस टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंड फाइनली यू हैव गॉट, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे फिर वही इक्वेशन आ जाएगी. इट मींस, इसका मतलब ये हुआ, इट इंडिकेट्स दैट आइदर यू टेक डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, द इक्वेशन विल रिमेन सेम, रिजल्ट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इट. So this is the Kirchhoffs law, and how to apply this Kirchhoff's second law. Kirchhoff's first law is based on conservation of charge. Kirchhoff's second law is based on conservation of energy. Right? चलिए एप्लीकेशंस लेते हैं. एप्लीकेशंस ऑफ Kirchhoff's law. Kirchhoff's law का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, उसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं. That is व्हीटस्टोन्स ब्रिज. स्टोन्स ब्रिज बेसिकली एक ब्रिज है, एक नेटवर्क है. ब्रिज स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. व्हीटस्टोन एक ऐसा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाया इन विच देयर आर 4 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड along the 4 sides of a parallelogram just like a bridge. देखिए, this network is called, this is P, this is Q, this one is R and this one is S. This arrangement is called Wheatstone bridge. ये arrangement Wheatstone bridge कहलाता है. A, B, C, D and E, ये आप की क्लोज कर दीजिए. This is Wheatstone bridge. So what is Wheatstone bridge? It is the combination of how many resistors? 4, P, Q, R and S, connected across 4 sides of a parallelogram, and across one diagonal, this is one diagonal BD, a galvanometer is connected. Suppose a galvanometer is connected over here, and across another diagonal AC, a cell or battery is connected. So this arrangement is known as Wheatstone bridge. So what is Wheatstone bridge? It is the arrangement of 4 resistances connected across 4 arms of a parallelogram. 4 arms of a parallelogram, and across one diagonal, what is connected? A galvanometer. What is the role of galvanometer? To detect the current. And across second diagonal, that is a cell is connected. तो एक गैल्वेनोमीटर, एक साइड में गैल्वेनोमीटर और दूसरी साइड में क्या होता है, सेल होता है. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज. अच्छा, यहां भी हो सकता है, बीडी के अलोंग सेल हो सकता है, एसी के अलोंग क्या हो सकता है, गैल्वेनोमीटर हो सकता है. ये इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज. ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया. काफी इंपॉर्टेंट है, काफी हेल्प करेगा हमारा आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में. व्हीटस्टोन ब्रिज आता है. तो देखिए, ऐसे केस में क्या करेंगे, इसमें एक टर्म आती है कंडीशन ऑफ बैलेंस. Condition of balance. Under what condition the bridge is said to be balanced? If P upon Q is equal to R upon S, then galvanometer does not produce any deflection or does not give any deflection. अगर इन दोनों रेजिस्टेंस की रेशियो, दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम और द नेटवर्क,
is equal to the ratio of the resistances of two other sides of the network. Under that condition, this galvanometer does not give any deflection, and the role of the galvanometer is to detect the current. It means current in this branch will become zero. And why the current flows? Just because of the potential difference. जैसे पानी है, why the water flows in a tube? Just because of pressure difference. Why the current flows? Just because of the potential difference. If there is no current in this arc, then point B and point D both are at same potential, and this is called the condition of balance of the Wheatstone bridge. So Wheatstone bridge may be unbalanced, Wheatstone bridge may be balanced. Wheatstone bridge क्या है? An electrical network which consists of four resistances connected across four sides of a parallelogram. Across one diagonal, a galvanometer is connected. Across another diagonal, a cell is connected. And this bridge will be balanced under which condition? When the side ratio of the adjacent sides of the ratio of resistances of adjacent sides of the parallelogram is equal to the ratio of two other adjacent sides of the resistances, then it is called balanced Wheatstone bridge. क्या कहेंगे इसको? Balanced Wheatstone bridge कहेंगे. अब इसको हम प्रूव करके देखते हैं. That is Ig is equal to 0. ठीक है. और कब होता है Ig 0? When point B and D both are same potential. और अगर दोनों same potential पर है, point B और D same potential पर है, then bridge is said to be balanced. चलिए इस कंडीशन को प्रूव करते हैं. Proof of this condition. How can we prove it? Proof of this condition. चलिए इसमें पहले करंट मानते हैं. Suppose this is current I. Let us imagine this current is I1 and this current is I2. What about this current is IG? IG हम फर्स्ट लो लगा रहे हैं. इधर से करंट I1 इधर से I2 है, तो ऑब्वियसली I किसके इक्वल हो जाएगा? I1 प्लस I2. इधर से अगर I1 जाएगा तो बताइए इसमें करंट कितना हमने एज्यूम किया? IG. अगर I1 इनकमिंग करंट है, IG आउटगोइंग करंट है, तो इधर कितना करंट होना चाहिए? I1 माइनस IG. इधर से करंट कितना आएगा? IG. इधर से कितना है? I2. तो इस वाले ब्रांच में कितना जाएगा? I2 प्लस IG. और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो करंट कितना मिलेगा? I1 plus I2. So I is equal to I1 plus I2. So this is the distribution of current as per the Kirchhoffs first law. टोटल करंट हमने I इमेजिन किया, दो हिस्सों में करंट डिवाइड किया, I1 I2. अच्छा, हम सिंप्लीफाई और भी कर सकते थे. अगर इधर I1 है तो I में से I1 माइनस करके क्या कर सकते हैं? I माइनस I1 भी कर सकते हैं. वो तरीका भी ठीक है. ये थोड़ा इजी हो जाएगा इसलिए हम कर रहे हैं. अब देखिए इसमें दो लूप लीजिए. एक लूप तो ये वाला लीजिए और दूसरे वाला लूप ये ले लीजिए आप. ये दो लूप आपके पास है. ये पॉजिटिव डायरेक्शन है. और KVL लगाइए. By KVL. KVL means Kirchhoff's second law. Which loop? That is loop A B D A. This loop A B D. चलिए यहां से चलो. ये पॉजिटिव डायरेक्शन मानी हमने. क्या लाया? कौन सा रूल है ये? बताओ क्या है? सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E. ये लॉ है. बताओ यहां से कितना आएगा? I1 इंटू P. पहला बड़ा I1 इंटू P. पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव. Why? Because the direction is same. दोनों में डायरेक्शन सेम है. यहाँ आओ, ये भी डायरेक्शन सेम है. IG इंटू G plus Ig into G. Why? G is the galvanometer resistance, Ig is the current, so it will become Ig into G. Now is equal to, और कोई रेजिस्टर है? Yes, one more resistor is there. Which one? I2 into Q, and it must be minus I2 into Q. देखिए करंट I2 है, ये रेजिस्टेंस Q है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस आ गया. Is there any current in the EMF source in this loop? There is no source of EMF in this loop. That's why right hand side will be 0. और अगर source of EMF नहीं है तो करंट कहां से आ रहा है? करंट कहीं बाहर किसी दूसरे लूप से भी आ सकता है. कोई दूसरा सेल है. कौन से वाला सेल है? ये है सेल which is responsible for the current. That's why right hand side is 0. And if Ig is equal to 0, then what is I1P minus I2Q is equal to 0, और I1P is equal to I2Q, और I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू Q अपॉन P, और I2 अपॉन I1 भी ले सकते हैं, और I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू P अपॉन Q. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. डू यू एग्री विद इट? बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? अगर कहीं डाउट है तो चलिए एक लूप और ले लेते हैं. कौन से वाला? B C D B. एक लूप और ले लीजिए. B C D B. इसमें अप्लाई करो. अब हमने ये वाली पॉजिटिव डायरेक्शन मानी. चलो बताओ यहां से Ig इंटू G. डायरेक्शन दोनों की कैसी है? जूम डायरेक्शन कैसी है? सेम है. तो कैसे टर्म आएगी? पॉजिटिव. दैट इज Ig इंटू G. नेक्स्ट, व्हाट अबाउट दिस टर्म एंड दिस टर्म? बोथ विल बी सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट्स व्हाई इट विल बी पॉजिटिव. I2 plus Ig multiplied by S. Any other resistance? Yes, one more is there. Tell me what about these two directions? Both are opposite. Opposite means which term? Minus Ig into R is equal to 0. And if Ig is equal to 0, then this term
दिस और दिस विल बिकम जीरो। क्या बचेगा यहाँ से, I2s माइनस I1r इज इक्वल टू जीरो, और I2s इज इक्वल टू I1r, और I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू R अपॉन S फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S. So this is condition of balance. Henceforth, it is condition of balance. अगर ratio of the adjacent sides, which side P and Q, resistance of this side, resistance of this side, ratio of these two sides is equal to the ratio of the resistances of these two sides, then there is no deflection in the galvanometer. Under that condition, these 2 points B and D will lie at the same potential. That's why it will be balanced bridge. Okay, and moreover, if you can just change it, P upon R is equal to Q upon S. If you have the ratio of these two sides is equal to the ratio of these two sides, again you will have the balance. So either ratio of these resistances of these two sides is equal to the ratio of resistances of these two sides, or the ratio of resistances of these two sides is equal to the ratio of resistance of these two sides. In both the cases, the galvanometer does not produce any deflection, and so the bridge is said to be balanced. And there is no change, no effect on the balancing condition if this galvanometer and the battery or cell are interchanged. किसी भी डायगोनल में, आप इस डायगोनल में अगर हम गैल्वेनोमीटर लगा दें, इस डायगोनल में हम बैटरी लगा दें, again we'll get the same result. So this is all about the condition of balance of Wheatstone's bridge. So Wheatstone bridge may be balanced, Wheatstone bridge may be unbalanced, but generally it is a complex network of 4 resistances connected across the 4 sides of a parallelogram. Parallelogram की structure बननी चाहिए, इस तरह के हम बना सकते हैं parallelogram का structure, and there will be 2 diagonals. Across one diagonal there is a galvanometer, other diagonal there is a क्या होता है बच्चों, source of EMF. तो अगर कंडीशन ऑफ बैलेंस है, यहाँ को रेजिस्टेंस लगा हुआ है, देन इट विल बिकम इनइफेक्टिव, कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा, उसका रोल ही नहीं रहेगा सर्किट में. तो ये कंडीशन ऑफ बैलेंस है, काफी इंपॉर्टेंट रूल है और ये काफी चीजों को सॉल्व करने में हेल्प करता है. और अगर कंडीशन ऑफ बैलेंस नहीं है, ऐसे केस में क्या करेंगे हम, फिर हम किरचॉफ लॉ लगा करके उसको सॉल्व करेंगे. और अगर सपोज ये कंडीशन बन जाती है तो बीच वाली आर्म को हम हटा सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर इसमें कोई करंट नहीं है. और अब देखिए कितना आसान हो जाएगा इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना. ये दोनों कैसे सीरीज में, ये दोनों कैसे सीरीज, और आपस में दोनों कैसे पैरेलल, तो कितने आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस इज यूज्ड टू सॉल्व सच टाइप ऑफ नेटवर्क्स. ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन.